Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you are regularly watching the videos and you must be knowing that we are doing chapter 14 of your EVS textbook. The name of the chapter is Animals Around Us. Children, we have completed the explanation of the chapter and we had started the exercise. In my previous video, I had started MCQs, multiple choice questions, that is fill in the blanks using correct option, that we completed. In today's video, we will be continuing with the exercises, rest of the exercises. But before that, let's revise what we have done in this chapter. Children, explanation is already done and a revision of the chapter is also done. मैंने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है और उसको मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया है, इसलिए अब हम चैप्टर का रिवीजन बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं चैप्टर को रिवाइज। एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। चिल्ड्रन, द एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। नंबर 1, birds generally lives on tree by making their blank, and options are web, nest, hole or den. Children, birds generally they live on land. चिड़िया जो होती हैं, birds जो होती हैं वो ट्री पर रहती हैं और क्या बना के रहती हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या था? करेक्ट ऑप्शन है हमारा नेस्ट। बर्ड्स जो है वो जनरली ट्री के ऊपर नेस्ट बना के रहती हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका करेक्ट ऑप्शन है नेस्ट। सेकेंड वन, अ डॉग लिव्स इन अ ब्लैंक। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? डेन, केव, कैनल, स्टेबल। जो डॉग है वो कहाँ रहता है, उसके हाउस को हम क्या कहते हैं? तो चिल्ड्रन, द करेक्ट ऑप्शन इज kennel. A dog lives in a kennel. Number 3, a plant lives in a shelter made by humans. Children, you have to find out from the option that which animal lives in a home, lives in a house made by human beings. जो इंसान बनाते हैं, इंसान के द्वारा बनाए हुए, हम ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए घर में कौन सा एनिमल रहता है? और हमारे ऑप्शंस हैं एलिफेंट, काउ, लायन एंड जीब्रा। सो चिल्ड्रन, द करेक्ट आंसर इज काउ। काउ लिव्स इन अ शेल्टर मेड बाय ह्यूमंस। नंबर 4, अ कैमल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डॉग, किंग, शिप और बीस्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है। A camel is called ship of the desert, and I have explained you the reason why a camel is called ship of a desert, that I have explained in my previous video. So if you have not seen, please see that video so that you will get the answer why camel is called ship of the desert. Okay, now it's time to start the new exercise. जो आज की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं, that is B. Today we will do exercise B. Give one word answers using the words given in the box. Okay, give one word answers using the words given in the box. मतलब आपको वन वर्ड में आंसर देना है और वो आंसर आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? एक बॉक्स है, उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स में से आपको आंसर सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो let's do that. First, let me draw the box in which the words are given. Let me draw the box.
ये हमारा बॉक्स हो गया और इसमें हमारे ऑप्शंस हैं COOP कूप, देन SHED shed, FAWN fawn, CALF calf, PUPPY puppy, BASKET basket. थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं बॉक्स को. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट, FOREST, and the word is KID kid. So we have these words: coop, shed, fawn, calf, puppy, basket, forest, and kid. These are the words given in the box, and from these words only we have to select the correct answer for each of the sentence, for each of the question. Children, as you can see, the words given in the box are either the name of the homes of animals or babies of animals. ये जो बॉक्स में, जो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो या तो एनिमल्स के शेल्टर के नाम है, एनिमल्स के होम्स के नाम है, या फिर उनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, तो वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज डियर्स बेबी. What do we call a deer's baby? जो डियर होता है, हिरन होता है, उसके बेबी को हम क्या बोलते हैं? डियर के बेबी को हम क्या बोलते हैं? कूप? नो. शेड? नो. फॉन? यस. वी कॉल अ डियर्स बेबी फॉन. डियर के बेबी को हम बोलते हैं फॉन. FAWN. FAWN. Deer's baby is called fawn. Number 2. Baby of an elephant. एलिफेंट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? What do we call baby of an elephant? एलिफेंट के बेबी को क्या बोलते हैं? कूप. ये तो हमारा हो गया है, तो विल क्रॉस इट. इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं. वी हैव यूज दिस. शेड? नो. काफ? यस. बेबी ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड काफ. चिल्ड्रन, वी प्रोनाउंस इट एज काफ. एल इज साइलेंट. इसमें जो ये एल है, ये क्या है? साइलेंट है. इसको हम लिखेंगे, इस एल लेटर को लिखेंगे, लेकिन बोलते समय, प्रोनाउंस करते समय इसका साउंड नहीं आएगा. लिखते हैं हम CALF, पर बोलते हैं CAF काफ. ओके, सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज काफ, CAF काफ. बट while writing the spelling we write CALF. Okay, so baby of an elephant is called calf. Baby of an elephant is called calf. Next, number 3, home for cats. We have to write the name of homes or home for cats. बिल्ली की जो घर होता है, बिल्ली का जो होम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Let's find the word. Coop? No. Shed? No. Puppy? No. Basket? Yes. Home for cats is basket. But children, home of cat is also called cattery. CATTERY. बिल्ली के जो घर होता है उसको कैटरी भी बोलते हैं.
CATTERY, कैटरी भी बोलते हैं, बट हियर बास्केट लिखा है। और ऑफ कोर्स जो कैट है वो बास्केट में भी रहती है, उनका जो बास्केट होता है उसमें भी रहती है, इसीलिए होम फॉर कैट्स इज बास्केट। होम फॉर कैट इज बास्केट। सो वी हैव यूज्ड दीज वर्ड्स, 3 वर्ड्स हमने यूज कर लिया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्टेटमेंट। Number 4, where elephants live। एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं? वेयर एलिफेंट्स लिव। हमें बताना है कि एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं, जहां एलिफेंट्स रहते हैं वो हमें बताना है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। कूप, नो। शेड, नो। पपी, नो। फॉरेस्ट, यस। FOREST। वेयर एलिफेंट्स लिव, जो हाथी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में। हाथी कहाँ रहते हैं? इन फॉरेस्ट। वेयर एलिफेंट्स लिव? फॉरेस्ट। नेक्स्ट, नंबर 5, वेयर hens live। अब हेन्स कहाँ रहती हैं, मुर्गियां कहाँ रहती हैं, वो हमें लिखना है। ओके, वेयर हेन्स लिव। मुर्गियां कहाँ रहती हैं, हेन्स कहाँ रहती हैं? कूप, यस। हेन्स लिव इन कूप। हेन्स कहाँ रहती हैं? कूप में रहती हैं। हेन्स लिव इन कूप। जो हेन्स के रहने का आपने जगह कहीं देखा होगा, बहुत सारी उसमें हेन्स रहती हैं, उसको हम बोलते हैं कूप। क्या बोलते हैं? कूप। वेयर हेन्स लिव? कूप। नेक्स्ट इज बेबी ऑफ अ गोट। बेबी ऑफ अ goat। Now we have to tell what do we call a baby of a goat। गोट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? गोट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन, वी कॉल a baby of a goat shed, no। puppy, no। kid, yes। we call baby of a goat kid। गोट के बेबी को किड कहते हैं। गोट के बेबी को किड बोलते हैं। Now moving on to the next. I hope these 3 are also clear. Where elephants live? Forest. Where hens live? Coop. Baby of a goat? Kid. Baby of a goat? Goat, kid. Next, number 7, shelter for cows। जहां काऊ को रखा जाता है, शेल्टर्स फॉर काउज। गाय कहाँ रहती हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? शेड, यस। शेल्टर्स फॉर काउज इज कॉल्ड शेड। हम हिंदी में उसे गौशाला बोलते हैं, है ना? तो इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड शेड। नंबर 8, नंबर 8 इज डॉग्स बेबी। डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 ऑप्शन, और वो है पपी। डॉग के बेबी को हम बोलते हैं पपी।
P-U-P-P-Y. Dog's baby is called puppy. Okay? ये हमने सारे वर्ड्स यूज कर लिए एंड आर दिस एक्सरसाइज बी इज ऑल्सो कंप्लीट. लेट मी रिवाइज दिस वंस अगेन. डियर्स बेबी फॉन. डियर के बेबी को बोलते हैं फॉन. बेबी ऑफ एन एलिफेंट calf. Home for cats basket. Where elephants live forest. Where hens live coop. Baby of a goat kid. Shelter for cows shed. Dog's baby puppy. Okay. Now moving on to the next part of the exercise. Children, since we were doing the B exercise B was related to shelters and babies of animals. Let's do some more exercise related to this. I want to tell you the names of other animals and their homes and babies. तो थोड़े से हम वो भी कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ एनिमल्स का किया है और while explaining the chapter I have given you names of some other animals with their babies and their shelter. वो मैंने आपको दोनों बताया था. तो हम एक बार उसको यहाँ पर एक्सरसाइज के फॉर्म में कर लेते हैं. Let me write the names of animals, homes, and babies. Animals, homes, and babies. Few more we will do. कैमल. कैमल के होम को क्या बोलते हैं? कैमल के होम को बोलते हैं शेल्टर. SHELTER. शेल्टर. एंड कैमल्स बेबी इज कॉल्ड काफ. कैमल के बेबी को हम बोलते हैं काफ. ओके. कैमल के बेबी को हम बोलते हैं या पहले रुके. लेट्स डू फर्स्ट एनिमल्स एंड देन होम्स. विल डू बेबीज लेटर ऑन. पहले कैमल्स होम इज कॉल्ड शेल्टर. कैमल के घर को हम शेल्टर बोलते हैं. लायन. लायन के होम को क्या बोलते हैं? Den. Lion's home is called den. Tiger. Tiger के होम को क्या बोलते हैं? Cave. Tiger के होम को cave. Bees. जो मधुमक्खियां होती हैं उनके होम को क्या बोलते हैं? Hive. 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 Okay. Bees live in hive. Tiger lives in cave. Lion lives in den. Camel lives in shelter. Then horse. Horse lives in stable. Horse lives in stable. Fish. Fish lives in aquarium. Fish lives in aquarium. Let me write some more animals. This is clear. Camel, shelter. Lion's home, den. Tiger's home, cave. Bees, hive. Horse, stable. Fish, aquarium. Next.
monkey, monkey's home is trees. monkeys कहाँ रहते हैं? ट्री पर रहते हैं, ट्री में रहते हैं, वो लोग ट्री के ऊपर घर बनाते हैं. देन डोंकी, डोंकी कहाँ रहता है? बार्न, BARN, डोंकी रहता है बार्न में. स्पाइडर, कुछ इंसेक्ट के भी नाम देख लेते हैं ना. स्पाइडर, उसके घर को हम बोलते हैं वेब. स्पाइडर के होम को बोलते हैं वेब. एंट्स, एंट्स कहाँ रहती हैं? चिल्ड्रन, एंट्स होम हाइव भी होता है और कॉलोनी भी बोलते हैं. एंटहिल भी होता है, तो वी कैन राइट कॉलोनी या हाइव या एंटहिल्स. ओके, एंट के घर को भी हाइव बोल सकते हैं, कॉलोनी भी होती है, या फिर एंटल्स. देन रैबिट, रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? बरो में, BURROW, बरो. रैबिट लिव्स इन बर्ड. देन आई होप इतना हमारा काफी है, बहुत सारे एनिमल्स हमने ले लिए. मंकी, ट्री, मंकी एंड चिंपैंजी, इवन चिंपैंजी ऑल्सो लिव्स ऑन ट्री. डोंकी, बार, स्पाइडर, वेब, एंट, कॉलोनी और हाइव और एंटहिल, रैबिट, बरो, रैट्स, होल, रैट का भी आप लिख सकते हो होल. ठीक है. So we have added some more animals and their homes. ठीक है. अब हम करेंगे एनिमल्स एंड देयर बेबीज. कुछ एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है. एनिमल्स एंड बेबीज. किसके बेबी को हम क्या बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ कैट. कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन. KITTEN. कैट्स बेबी इज कॉल्ड किटन. ओके. काउ, काउ के बेबी को क्या बोलते हैं? काफ. जैसे एलिफेंट के बेबी को हमने जाना कि काफ बोलते हैं, वैसे ही कैट के बेबी को भी काफ सॉरी काउ के बेबी को भी काफ बोलते हैं. बफलो के बेबी को भी काफ बोलते हैं. कैमल के बेबी को भी काफ बोलते हैं. ठीक है. कैमल्स बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड काफ, काउस बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड काफ, एंड बफलोस बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड काफ. ओके. देन लायन. लायन है या टाइगर है, दोनों के बेबी को हम बोलते हैं कब. लायन और टाइगर दोनों के बेबी को हम बोलते हैं कब. CUB, कब. मंकी के बेबी को क्या बोलते हैं? मंकीज बेबी इज कॉल्ड इन्फेंट, INFANT. और चिंपांजी के बेबी को भी इन्फेंट बोलते हैं. मंकी के बेबी को भी इन्फेंट एंड चिंपांजी के बेबी को भी इन्फेंट बोलते हैं. ओके. देन हॉर्स. हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? हॉर्स बेबी इज इधर कॉल्ड कॉल्ट, उसको हम या तो कॉल्ट बोलते हैं या फिर फोल बोलते हैं. FOAL. हॉर्स के बेबी को कॉल्ट या फिर फोल. ठीक है. देन वी हैव डियर, हमने कर लिया. कैंगरू, KANGAROO.
KAROO, कैंगरू। कैंगरू के बेबी को क्या बोलते हैं? कैंगरू के बेबी को जोई। क्या बोलते हैं? जोई, JOEY, JOEY, जोई। Kangaroo's baby is called Joey. Kangaroo's baby is called Joey. So kangaroo's baby is called Joey. Okay. Cat, kitten, cow, calf, lion, tiger, cub, monkey, infant, horse, colt और foal दोनों. Kangaroo, Joey. Okay, now let's write some more animals' name and their babies. Hen. Hen के बेबी को क्या बोलते हैं? Chick. CHICK. Hen's baby is called chick. Fish. Fish के बेबी को क्या बोलते हैं? Fingerling. FINGERLING. फिश के बेबी को बोलते हैं फिंगरलिंग. पिग. पिग के बेबी को बोलते हैं पिगलेट. पिग्स बेबी इज कॉल्ड पिगलेट. देन फ्रॉग. फ्रॉग की बेबी को क्या बोलते हैं? टेडपोल. ओके, आई होप हमने काफी सारे एनिमल्स के नाम ले लिए हैं. चिल्ड्रन, बफलो इज ऑल्सो, बफलो's baby is also called calf, that I have told you. So hen's baby chick, fish baby is called fingerling, pig's baby is called piglet, frog's baby is called tadpole. और बर्ड के बेबी को क्या बोलते हैं? नेस्टलिंग बोल सकते हैं. नेस्टलिंग बोलते हैं, या उनको भी चिक भी बोल सकते हैं. चिक भी बोलते हैं या नेस्टलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमने एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम हमने किए. कुछ और एनिमल्स और बेबीज के नेम, कुछ और एनिमल्स और उनके होम्स के नेम मैंने आपको करा दिए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स let's do one more exercise, that is C. Exercise C. इसमें आपको क्या करना है? Match the animals to their babies. Children, that's why I did that. Animals और babies वाला इसीलिए किया है because हमारा जो next exercise है उसमें animals की पिक्चर है और उनके babies का पिक्चर है. तो आपको animal को उसके बेबी के साथ मैच करना है. ठीक है, एनिमल्स है और उनका बेबीज का पिक है. आप देख रहे होंगे आपके एनिमल्स और बेबीज का इसमें पिक दिया हुआ है एंड यू हैव टू मैच इट. उसको आपको मैच करना है. नाउ चिल्ड्रन, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ, अब मैं एनिमल्स और उनके बेबीज को तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, सो आई विल जस्ट राइट द नेम. मैं नाम लिख देती हूँ बिकॉज पिक्चर इज ऑलरेडी गिवन. आई विल राइट द नेम. पहला पिक्चर है हॉर्स का. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ हॉर्स. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ लायन. थर्ड पिक्चर इज ऑफ hen. फोर्थ पिक्चर इज ऑफ शीप. मैंने आपको शीप का बेबी नहीं बताया ना. शीप का बेबी इज कॉल्ड लैम. ये मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताया था, लेकिन अभी जब मैं करा रही थी तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ शीप, लेकिन मैं अब आपको बता रही हूँ. शीप के बेबी को लैम्ब बोलते हैं, LAMB, लैम्ब. ओके, शीप बेबी इज कॉल्ड लैम्ब. फिर नेक्स्ट है हमारा पिक्चर काउ का. ऐसे आप पिक्चर्स बने हुए हैं. सिंस आई कैन नॉट ड्रॉ दीज पिक्चर्स, आई एम राइटिंग द नेम. क्योंकि मैं ये पिक्चर नहीं बना सकती हूँ इसीलिए मैं नाम लिख रही हूँ, पर आपकी बुक में पिक्चर बने हैं. ठीक, हॉर्स, लायन, hen, शीप और काउ का पिक्चर बना है. अब नीचे उनके बेबीज के पिक्चर हैं. ठीक है, यहाँ पर जो है
थोड़ा सा और नीचे होते हैं, यहाँ पर जो पिक्चर है वो CUB कब का पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पर जो पिक्चर है वो है CHICK चिक का पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पर है लैम्ब का, यस लैम्ब। देन उसके नीचे काफ का पिक्चर है और फिर इसके नीचे यहाँ पर कॉल्ट का पिक्चर। ओके, हॉर्स के नीचे कब का पिक्चर बना हुआ है, लायन के नीचे चिक का पिक्चर बना है, हैन का पिक्चर के नीचे लैम्ब का पिक्चर बना है, शीप के पिक्चर के नीचे काफ का पिक्चर बना हुआ है और काउ के पिक्चर के नीचे कॉल्ट का पिक्चर बना है। नाउ यू हैव टू मैच इट। अब इसको मैच करना है। तो चिल्ड्रन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू द एनिमल्स एंड देयर बेबीज। एनिमल्स और उनके बेबीज को क्या कहते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली मैच करेंगे। हॉर्स जो है फर्स्ट पिक्चर है ना, तो हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं कॉल्ट, है ना। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, COLT कॉल्ट। लायन के बेबी को हम बोलते हैं कब, लायंस बेबी इज कॉल्ड कब। देन hen के बेबी को बोलते हैं चिक, बेबी ऑफ hen इज कॉल्ड चिक। शीप के बेबी को बोलते हैं लैम्ब, LAMB लैम्ब। एंड काउ के बेबी को बोलते हैं काफ। गॉट इट? दिस इज हाउ वी हैव टू मैच। आपको हॉर्स की पिक्चर को लास्ट पिक्चर के साथ मैच करना है, कॉल्ट का पिक्चर है वो। लायन के पिक्चर को आपको फर्स्ट पिक्चर कब के साथ मैच करना है। हैन के पिक्चर को आपको सेकंड पिक्चर जो है चिक उसके साथ मैच करना है। शीप के पिक्चर को आपको थर्ड पिक्चर जो लैम्ब का है उसके साथ आपको मैच करना है। और लास्ट में जो काव का पिक्चर है वो आपको फोर्थ पिक्चर जो है काफ उसके साथ मैच करना है। एंड योर मैचिंग इज डन। एनिमल्स एंड देयर बेबीज वाला हमारा ये फिर कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज B and C today along with some extra work, that is animals in their homes and animals and their babies. So आज का हमारा वीडियो में इतना ही करेंगे हम। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और कुछ उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दैट आई विल गिव यू फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। आपके चैप्टर के ही कंटेंट से आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऑल्सो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर इवन बेटर। ओके, आज जो किया है उसको आप लर्न करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।